हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का रिवीजन। और इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और इस पर्टिकुलर चैप्टर की मैंने वीडियो भी शेयर करी है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही साथ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 70 सिंगल वर्ड आंसर। सो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे 70 एमसीक्यूज जो कि आपके कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लावरिंग प्लांट आर नोन एज एंजियोस्पर्म। सो फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म कहा जाता है और जो फ्लावर है यही सेक्सुअल कैरेक्टर्स को होल्ड करता है। इसी में सारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं एंड रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज विच एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फ्लावर है और एरियल पार्ट से यहाँ मतलब है कि ये शूट सिस्टम में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म इज नोन एज एंड्रोशियम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म इज नोन एज गाइनोशियम। Next is the androecium have anther and filament. Collectively they are known as stamen, stigma, style, ovary and ovules. All are parts of gynoecium, right? And they are also known as pistil and they are also known as carpels. Next is the third and fourth whorls are associated with which part of flowering plant? Now the third whorl it is associated with male reproductive part and fourth whorls जो है वो associated with female reproductive part. Next is the fertile part which is bilobed and having two theca in each is known as anther. So basically anther में they are fertile, they are bilobed and they have two theca. Now the anther which are having two theca उनको बोला जाता है डाइथिकस and when they have single lobe anther it is known as monothecus. Now अब मोनोथीकस में क्या होता है कि मोनोथीकस जो है ये टू साइडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट, वेयर एज डाइथीकस इज अ फोर साइडेड स्ट्रक्चर। सो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोथीकस एंड डाइथीकस। नेक्स्ट इज हाउ मेनी pollen sacs in four-sided tetragonal structure. So four-sided tetragonal structure में फोर pollen sac या microsporangia present होते हैं. Next is the pollen sacs are also called as microsporangia और microsporangia pollen sac ये सब क्या हैं? ये सारे के सारे male reproductive parts से associated हैं. Next is how many pollen sac in each lobe of ditheca. So there are basically two pollen sac in each lobe of ditheca. Next is which it provides nourishment to pollen grains having many nucleus with dense cytoplasm and it is the innermost layer. So what is it? It is tapetum, right? So यहाँ पे it provide nourishment to pollen grain, right? So यहाँ पे nourishment से आप एंडोस्पर्म से कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा गया it provide nourishment to pollen grain. So it is tapetum. Next is what occupies the center of microsporangia. Also they have compactly arranged homogeneous cells in young anther, right? So it is sporogenous tissues. Now जो sporogenous tissues हैं यही form होते हैं with microspores. Next is the microspores tetrads are formed by meiosis division. So meiosis division कैसा होता है? Reduction division. Of which tissue? So it is basically sporogenous tissues, right? Next is the process of formation of microspores is known as microsporogenesis. So microsporogenesis ही है जिसमें formation of microspores हो रहे हैं. Next is the cell of sporogenous tissues are pollen mother cells or PMC. Next is the layer which covers sporogenous tissues is tapetum.
राइट। सो टपेटम कौन सी लेयर को कवर अप कर रहा है? इट इज पोरोजिनस टिश्यूज। So let's discuss 20th question. The fawn pollen grains are released from anther by digestion of anther. So basically जो fawn pollen grains है, अब ये mature pollen grain है. Now they are ready for sexual reproduction. अब ये move करेंगे towards stigma and कैसे move करते हैं? It is by the digestion of anther. Next is complete the following. What is the color of powdery pollen grain? It is yellowish. What is the diameter of pollen grain? It ranges between 20 to 25 micrometer. Next is the outer layer and inner layer of pollen grain is exine the outer, entine the inner layer. The exine is made up of sporopollenin, जो कि इसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि इसको अनफेवरेबल कंडीशंस में प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट इज द इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन. सेल्यूलोज जो कंपोनेंट है ये सेल वॉल्स में भी प्रेजेंट होता है प्लांट्स की. नेक्स्ट इज द वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव आर द सेल्स ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन्स. मैच्योर पॉलन ग्रेन्स के दो फॉर्म है, दैट इज वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव. नेक्स्ट इज one generative and one vegetative cells is two cell stage, right? Next is the generative cells divides to form two male gamete. What division pattern does it follow? So generative cells अगर divide हो रहे हैं to form two male gametes, it is by the process of meiotic division, जिसको reduction division कहते हैं. Next is the two male gamete cells plus one vegetative cells, they together form three celled stage. Next is the exine and intine collectively form sporoderm. So sporoderm एक वो लेयर है जो कि एक्साइन और एंटाइन को कलेक्टिवली मिला के फॉर्म होती है. जैसे कि हम प्रोटोप्लाज्म यूज करते हैं टर्म फॉर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट? उसी तरीके से एक्साइन एंड एंटाइन को एक कलेक्टिवली टर्म दिया गया है, दैट इज स्पोरोडर्म. नेक्स्ट इज इट इज यूबिक्विटस. अब यूबिक्विटस का मतलब होता है कि वो कहीं पे भी हो सकता है. And causes pollen allergies. So it is carrot grass, Parthenium. Next is the viability of pollen grain. It depends on factors like temperature and humidity. Right. So viability का मतलब है कि एक pollen है या pollens हैं, उनकी viability है कि वो कितने टाइम पीरियड तक या कितने ड्यूरेशन तक वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी कर सकते हैं, या वो उनकी कितनी देर की ये क्षमता है कह सकते हैं. सो हो सकता है वो जो सीड है उसकी 1 आवर हो सकता है वो 24 आवर हो. तो इस तरीके से ये वेरी करता है. हो सकता है वो किसी टेम्परेचर कंडीशन के लिए वेरी हो, फेवरेबल हो, किसी कंडीशन में ना फेवरेबल हो. तो इस तरीके से वायबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है. सो वायबिलिटी के टू मेजर फैक्टर जिस पे वो डिपेंड करता है, इट इज टेम्परेचर एंड इट इज ह्यूमिडिटी. सो राइस एंड व्हीट की 30 मिनट्स है. रोसेशिया, लेग्यूमिनोस एंड सेलोनेशिया की 1 मंथ तक होती है, राइट? नेक्स्ट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन इन पॉलन बैंक्स एंड सीड बैंक्स आर डन विद लिक्विड नाइट्रोजन, राइट? सो प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है? इट इज विद द लिक्विड नाइट्रोजन. व्हाट इज द नेम ऑफ प्रिजर्वेशन टेक्निक? इस प्रिजर्वेशन टेक्निक को क्या बोलते हैं? इट इज क्रायो प्रिजर्वेशन. सो लिक्विड नाइट्रोजन, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है इट इज अराउंड -196 डिग्री सेल्सियस एंड यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन है और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन. नेक्स्ट इज व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन? इट इज -196 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट इज माइक्रोस्पोर्स आर एसोसिएटेड विद व्हिच रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट? सो इट इज androecium, which is male part. Next is pistil fused together is known as syncarpus. So अगर pistils जो हैं वो आपस में अगर fused हैं, so they are syncarpus. If they are in free form, then it is apocarpus. Which part of the gynoecium first receives the pollen grain? So कौन सा वो part है gynoecium का जो कि pollen grain को receive करेगा सबसे पहले? So it is stigma. नेक्स्ट इज द ओवेरियन कैविटी कंसिस्ट ऑफ ओव्यूल्स, और ओवेरियन कैविटी को क्या बोला जाता है? इट इज लोक्यूल्स. नेक्स्ट इज हाउ मेनी मेगास्पोर इन व्हीट? सो बेसिकली 1. द ओव्यूल हैव प्रोटेक्टिव लेयर व्हिच कवर्स द न्यूक्लियस इज इंटेगुमेंट. नाउ इंटेगुमेंट वो है जो कि ओव्यूल की एक प्रोटेक्टिव लेयर है. नेक्स्ट इज द स्मॉल ओपनिंग एट इंटेगुमेंट इज नोन एज
माइक्रोपाइल। सो माइक्रोपाइल एक पॉइंट है जहाँ पे जो इंटीग्यूमेंट है, जो कि लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर, उस पे एक ओपनिंग है। नाउ ये ओपनिंग इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहीं से पॉलन ट्यूब के थ्रू जो मेल गैमीट्स हैं वो एंटर करेंगे। नाउ फुल फॉर्म ऑफ MMC, इट इज मेगास्पोर मदर सेल, राइट। नेक्स्ट इज, if ovule is known as megasporangia, then embryo sac is known as female gametophyte। ठीक है, so दोनों जो हैं एसोसिएटेड हैं विद गायनोशियम, एंड दोनों एसोसिएटेड है विद गायनोशियम। जो मेगास्पोरेंजियम है इसको ओव्यूल कहा जाता है और एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट इज द 4 मेगास्पोर्स are formed by meiosis of MMC, which is megaspore mother cell। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द सिंगल female gametophyte is developed by only one functional megaspore out of 4। फिर से पढ़ते हैं इसे। सिंगल female gametophyte is developed by only one functional megaspore out of 4। उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक। सो मोनोस्पोरिक क्या है? सिर्फ एक सिंगल गैमेटोफाइट या सिंगल एम्ब्रियो सैक से डेवलप होने वाला एक फंक्शनल मेगास्पोर, राइट। नेक्स्ट इज 248 न्यूक्लिएट स्टेजेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक बाय फॉलोइंग विच डिवीजन पैटर्न? सो ये होता है माइटोटिक डिवीजन पैटर्न। So 2 + 4 + 8 जो न्यूक्लिएट स्टेजेस फॉर्म हो रही है, इट इज बाय माइटोटिक डिवीजन पैटर्न। नेक्स्ट इज, आउट ऑफ 8 हाउ मेनी पोलर न्यूक्लियाई सेल्स आर फॉर्म्ड? सो जो पोलर न्यूक्लियाई सेल्स होती हैं ये बेसिकली 2 होती हैं, राइट। सो पोलर न्यूक्लियाई सेल्स जो है ये एक सेंट्रल सेल है। इस पर्टिकुलर सेंट्रल सेल के 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। पोलर न्यूक्लियाई किसमें है? ये है सेंट्रल सेल में। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल विद इन एम्ब्रियो। सो सबसे पहले द एग apparatus is located at macropylar end. 2 synergid and 1 egg cell form egg apparatus. 2 synergid and 1 egg cells form egg apparatus. The chalazial end have how many cells? Name them. So chalazial end जो होता है इस पे 3 cells होते हैं, इनको antipodal cells कहते हैं। And how many polar nuclei in one large central cell? So they are 2 polar nuclei. Next is numerically break the 8 nucleate into 7 cells. So 8 nucleate को हमें 7 cells में divide करना है। So antipodal cells जो होते हैं, इस antipodal cells में 3 cells हैं, right? जो central है इसमें 2 polar nuclei है, लेकिन इनका सेल एक ही है, जिसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं। एंड नेक्स्ट थर्ड जो है इसमें 2 सिनर्जिड और एक एग सेल फॉर्म होता है। सो ये हो गए 3, ये हो गया 1, ये हो गया 3। सो इट इज 3 + 1 + 3, तो ये हो गए 7 सेल। नेक्स्ट इज द प्लांट विच डू नॉट cross pollinate as their anther stigma lies too close. The type of flower is क्लिस्टोगैमी। सो क्लिस्टोगैमी में मोस्टली ऑटोगैमी भी देखने को मिलती है, बिकॉज इनके फ्लावर्स जो होते हैं वो क्लोज स्ट्रक्चर होते हैं और ये किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अलाउ नहीं करते हैं, और सेम फ्लावर्स ही जो है वो आपस में पॉलिनेट करते हैं और आपस में अपने पॉलिन्स एंड जो कैरेक्टर्स है वो शेयर करते हैं। नेक्स्ट इज द सेल्फ एक्सेप्टेंस of right pollen pistil interaction is known as self compatible। self compatible का मतलब ही यही है कि जो स्टिग्मा है वो उन्हीं pollen grains को अलाउ करेगी एंटर करने के लिए जो कि एक्सेप्टेबल होंगे। नेक्स्ट इज द प्रैक्टिस ऑफ रिमूवल ऑफ इमैच्योर एंथर इज इमस्कुलेशन। सो ये बेसिकली प्रोसेस जो है ये आर्टिफिशियल ब्रीडिंग से एसोसिएटेड है, जिसका पहला स्टेप जो है इमस्कुलेशन है।
इसके बाद की जाती है इसमें बैगिंग ताकि कोई कंटामिनेशन ना हो सके, और इसके बाद किया जाता है इसमें रीबैगिंग. And all these three are the major steps of artificial hybridization. Next is name the process through which egg cell fusions with one male gamete form diploid cell. Name the process through which egg cell fusion with one male gamete it forms diploid cell. It is syngamy. So syngamy में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो through pollen grains जो आए हैं, there are two male gamete. एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल से फ्यूज करेगा. तो एग सेल से जो फ्यूज करने वाला मेल गैमेट है, ये टुगेदर ये फॉर्म करेगा एक डिप्लॉयड सेल फॉर्मेशन, और उस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी. नेक्स्ट इज द मेल गैमेट फ्यूजन विद टू पोलर न्यूक्लियाई. इट प्रोड्यूसेस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है पैम. नेक्स्ट ट्रिपल फ्यूजन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस. तो 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस यहाँ पे जो हो रहा है फ्यूजन, और ट्रिपल फ्यूजन जिसको बोल रहे हैं, इसमें 3 हैप्लॉइड कैसे, 2 तो पोलर न्यूक्लियाई हैं और एक मेल गैमेट है. सो इट इज 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूजन एंड टुगेदर दे आर फॉर्मिंग ट्रिपल फ्यूजन. नेक्स्ट इज सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन फिनोमिना आर एसोसिएटेड विद डबल फर्टिलाइजेशन. सिनगैमी जिसके थ्रू एक डिप्लॉयड सेल फॉर्म होगा प्लांट का, और ट्रिपल फ्यूजन क्या कर रहा है, ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, और टुगेदर दे आर फॉर्मिंग डबल फर्टिलाइजेशन. नाउ बढ़ते हैं अपने 49th क्वेश्चन की तरफ. द एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कॉटिलेडन्स आर द पार्ट ऑफ डाइकोटिलेडन्स. द कॉटिलेडन्स ऑफ ग्रास फैमिली इज क्यूटिलम. In angiosperm, the final product of sexual reproduction is seeds. Seeds which do not use endosperm completely during embryogenesis are known as albuminous seeds. Seeds which completely utilize endosperm during embryogenesis are non-albuminous seed. The remnant nucleus of black pepper is known as perisperm. Now, during unfavorable condition, the plant growth is slow or inactive. The period is known as dormancy. The banana develops without fertilization. It is a parthenocarpic fruit. Next is the edible part of apple is thalamus, और एप्पल को ही बोला जाता है फॉल्स फ्रूट. अदर एग्जाम्पल यहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी है. नेक्स्ट इज द 10,000 year old viable seed is from Arctic tundra. Name the oldest viable seed. So it is Lupinus arcticus or lupine. Next is the viability of Phoenix dactyli, which was excavated near Dead Sea, is 2000 years. Right. Now, next, it mimics sexual reproduction. So basically, it is a asexual reproduction, but it mimics like sexual reproduction. The process is apomixis. Next is the part which directs the entry of pollen tube into female gamete is filiform apparatus. So filiform apparatus जो है, जो कि प्रेजेंट होता है एट द साइट जहाँ पे सिनर्जिक प्रेजेंट है, एंड वहीं पे एक्सेल भी प्रेजेंट है जहाँ पे 2 सिनर्जिक सेल प्लस 1 एक्सेल होता है. वहीं पे फिलिफॉर्म apparatus भी प्रेजेंट है. तो इसी साइट के थ्रू जो पॉलिन्स हैं, पॉलिन ट्यूब्स हैं, जो एंटर करती हैं. इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. सो वो क्या है, इट इज एंडोस्पर्म. Central cell plus 1 male gamete fuse together to form. So central cell जिसमें हमने देखा था पोलर न्यूक्लियाई हैं और एक मेल गैमीट है. तो ये फ्यूज करके ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एंडोस्पर्म. राइट. यहाँ पे सेंट्रल सेल पूछा गया है. अगर यहाँ पे एक्सेल होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, कमेंट करके आप जरूर बताएं, और क्योंकि ये मैंने डिस्कस भी कर लिया है आगे. लेमन have more than one embryo in a seed. It is known as polyembryo. Next is hypocotyle, epicotyle are the parts of embryonal axis. Next is the pollen grain of aquatic habitat is protected with mucilaginous. So mucilaginous की एक layer form होती है over the aquatic habitat और जो pollens हैं ताकि ये water resistant बन सकें. Next is pollination that brings genetical differences is
जीनोगैमी। सो जीनोगैमी एक पॉलिनेशन है, टाइप ऑफ पॉलिनेशन है जिसके थ्रू जेनेटिकल डिफरेंसेस आ सकते हैं और वेराइटीज जो फॉर्म होती हैं वो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलिनेशन पैटर्न से होती हैं। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन yucca प्लांट एंड moth इज म्यूचुअल रिलेशनशिप। सो बेसिकली यहाँ पे moth जो है वो अपने एग ले करता है और yucca प्लांट जो है वो एज उसके लिए जो moth है ये एक पॉलिनेटिंग एजेंट या पॉलिनेटर का काम करता है yucca प्लांट के लिए, राइट। सो जो भी पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं उसको बोला जाता है एंटोमिफिली। नेक्स्ट इज what facilitate the sexual reproduction between non-motile gametes of plants। so plants के जो gametes हैं वो नॉन मोटाइल हैं, चाहे वो पोलन ग्रेन हो, चाहे वो ओवरी ओव्यूल पार्ट हो, स्टिग्मा स्टाइल हो। सो ये एक नॉन मोटाइल है और प्लांट भी एक इटसेल्फ नॉन मोटाइल। सो इनके रिप्रोडक्शंस कैसे हो पा रहे हैं? इट इज विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटर्स। अब ये पॉलिनेटर्स एबायोटिक भी हो सकते हैं and it can be biotic as well। so ये थे 70 क्वेश्चंस जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से हमें डिस्कस करने थे। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और बाकी इस पर्टिकुलर चैप्टर का अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है, आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। Thank you for watching. Stay healthy, stay safe. All the best.